Good morning, viewers. You're now watching Hornbill TV. Air Marshal Ashutosh Dixit underscored the importance of jointness, innovation and indigenization in strengthening India's defence ecosystem. Referring to Kalam and Kavach as the idea and the shield, he said the defence establishment is building a stronger and more connected architecture. Now this Kalam and Kavach, the idea and the shield, what we are building in headquarter IDS is the architecture that connects them and joints. We are building strong joints. The direction is set, the structures are taking shape, the culture is shifting, and with the energy and commitment I feel in this room from the defense forces, from industry and from our innovators, I have no doubt that the idea we are building will be worthy of those who serve it. So like it is said in Sanskrit, Ekta Baddham Balam Shreshtam Vikhanditam Vinishyati Tatmat Sarv Prayatnen Ektam Sarrakshyat Sada. Meaning the person who is united will always win. So before I conclude, I want to give 3 takeaways so that what you take from this room when you go out, what to discuss. So there are 3 points which I would like to state. My first point is that jointness is not optional. It is not either or. It is a foundation. Every stakeholder in this room, from industry to academia, must design, build, think and innovate with jointness in mind from day one. My second takeaway is indigenization must be matched by innovation and patience. Building at home is not enough. What we build must be world class, and getting there requires tolerance of failure, steady procurement system and long-term industry commitment. The call is clear, industry must step up to military grade standards and the military must give indigenous products the runway they need to mature. My third point, the third takeaway is that the innovation pipeline must reach the field, not just the showcase. IDEX has created an exciting ecosystem of startup and ideas. But the mission is not innovation for its sake. It is innovation that reaches the soldier, sailor and airman as deployed capability. The last mile from concept to induction is where effort must now be concentrated. If your technology solves a joint problem, headquarter IDEX is your bridge to the force. Come forward, engage early and build for the battlefield, not the exhibition floor alone. Thank you very much for listening to me. Jai Hind. BJP MP Sambit Patra launched a sharp attack on leader of the opposition Rahul Gandhi over his foreign visits and alleged expenditure. Patra claimed that Rahul Gandhi has undertaken 54 foreign trips during his 22 years in elected office, but questioned the source of funding for those visits. He alleged that 3 to 4 people accompanied Rahul Gandhi on each trip and claimed that the total expenditure on these foreign tours amounted to nearly 60 crore. Patra further alleged that Rahul Gandhi's declared income between 2013 and 14, 2022 to 2023 was around 11 crore. के नेता से उनके उत्तर मांगे जाएंगे। मैं बताना चाहूंगा कि भारतवर्ष के सबसे बड़े विपक्षी दल के मुख्य नेता LOP, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आदरणीय राहुल गांधी लगभग 22 वर्षों से इलेक्टेड ऑफिस में हैं। 22 वर्षों से 22 वर्षों में वो कितनी बार विदेश गए, तो अभी तक जो डिक्लेयर्ड है और पब्लिक डोमेन में आया है उस सब को काउंट करके 54 फॉरेन ट्रिप्स बनता है। 22 वर्षों में पब्लिक लाइफ में रहते हुए 54 टाइम्स राहुल गांधी जी विदेश यात्रा पे गए, जिसमें कौन कौन से देश हैं? इटली है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स है, जर्मनी है, वियतनाम है, कंबोडिया है, सिंगापुर है, बहरीन है, मालदीव्स है, कतर है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। और 3 मई 2026 को एक्स और सोशल मीडिया के पोस्ट पर जो फुटेज सर्कुलेट हुआ, जो अनअनाउंस्ड यात्रा रही, उसमें मस्कट और ओमान भी है। तो आज इन सब विषयों पे विस्तार से चर्चा होगी और हम यहां बहुत बड़े खुलासे करेंगे। इनमें से अधिकांश जो ट्रिप है, मैंने आपको कहा 54 ट्रिप है, 54 ट्रिप्स है, इनमें अधिकांश ट्रिप्स के
ऑन रिकॉर्ड कॉलम फिल है, मतलब वो ऑन रिकॉर्ड गए हैं। जो ऑन रिकॉर्ड नहीं है वो भी बताऊंगा। ऑन रिकॉर्ड गए हैं, उसमें पब्लिक डेटेड होस्ट पेज है, अर्थात होस्ट कब बुला रही है, डेट कब है, इसका पब्लिक डेटेड होस्ट पेज है। प्रेस आइटिनरी, अर्थात प्रेस के जो कब स्टेटमेंट जारी होंगे, प्रेस को कब संबोधित करेंगे, यह प्रेस आइटिनरी भी है। पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड, छुट्टी रही उनकी पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट में नहीं आए, कमेटी की मीटिंग में नहीं आए और उसका कारण विदेश यात्रा रही, पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड है। और फोटो ट्रेल है। मैं मीडिया के पूरी उन सूचियों को भी सामने रखूंगा कि कौन कौन से अखबार में फोटो भी छपे, फोटो ट्रेल है। कहने का तात्पर्य है कि यह जो विदेश यात्रा रही, द ट्रिप्स आर पब्लिक, ये पब्लिक ट्रिप्स है, बट फंडिंग ट्रायल इज नॉट पब्लिक। सबसे बड़ी बात है कि ट्रिप्स पब्लिक है, फंडिंग पब्लिक नहीं है। अब हम एक एक करके कहां कितनी फंडिंग हुई है, किसने फंडिंग किया है और वो खुलासा क्यों नहीं हुआ है, इस विषय पे चर्चा करेंगे। इस पे एक लेजर बनाया गया है, जिस लेजर को मैं आपके सामने रखूंगा इन 54 ट्रिप्स का। इस लेजर में एक एक ट्रिप को लेकर हिसाब लगाया गया है कि आखिर राहुल गांधी के हर ट्रिप में अमूमन राहुल जी ने या उनकी टीम ने या कांग्रेस पार्टी ने डिक्लेयर तो नहीं किया है, मगर खर्चा कितना हुआ होगा। तो ये कैलकुलेशन कैसे होगा, अंदाजे से तो नहीं हो सकता है। तो इसका मॉडल होता है और उस मॉडल को कहते हैं बॉटम अप मॉडल एस्टिमेशन ऑफ द कॉस्ट। नीचे से ऊपर तक एक बॉटम अप मॉडल के माध्यम से ये खर्चा लगाया गया। जैसे कि राहुल जी जाते हैं विदेश में, तो अगर एक लॉन्ग हॉल जर्नी है, बड़ी जर्नी है यहां से न्यूयॉर्क तक, तो कैसे जाएंगे राहुल जी? फर्स्ट क्लास में जाएंगे। तो फर्स्ट क्लास के पैसे को इंक्लूड किया गया, वो इकोनॉमी में नहीं जाएंगे, वो फर्स्ट क्लास में जाएंगे। तो फर्स्ट क्लास का पैसा का खर्चा इंक्लूड किया गया। कितने लोग जाते हैं, तो जितने डिक्लेयर्ड हैं, जितनी बार डिक्लेयर किया है और सीसीटीवी फुटेज कैमरा सिक्योरिटी को देखा गया है, उसमें लोगों की संख्या कैलकुलेट होती है कि इतने लोग उनके साथ गए हैं। ऑन एन एवरेज हर उनके विदेश यात्रा में 3 से 4 लोग उनके साथ ट्रेवल किए हैं। और अगर चकमा देकर एसपीजी को या सीआरपीएफ को गए हैं, बिना सिक्योरिटी के गए हैं, वो भी मैं बताने वाला हूं कितनी बार चकमा दिया है। येलो बुक को काउंटर करके गए हैं, वो भी बताएंगे। तो उसमें सिक्योरिटी वाले भी ऐड होते हैं, वरना 3 से 4 लोग अमूमन उनके साथ गए हैं और वो बिजनेस क्लास में गए हैं। तो बिजनेस क्लास का खर्चा कितना होता है? जिस शहर में उतरते हैं तो स्वाभाविक है वहां पर कोई टैक्सी लेके नहीं जाते हैं, वहां पर एक शॉफर ड्रिवन कार में ही राहुल गांधी चलते हैं। तो उसका खर्चा कितना होता है? होटल में रुकते हैं तो किसी सड़क के किनारे मोटेल में तो नहीं रुकते हैं, 5 स्टार सिटी रेट के अनुसार, कि वहां 7 स्टार नहीं, चलिए 5 स्टार में तो कम से कम रुकेंगे ही, 5 स्टार सिटी रेट के अनुसार यह सिटी ग्रेड रेट लगाए गए हैं। उसके साथ साथ फूड एंड बिवरेजेस 5 स्टार के लगाए गए हैं। इवेंट सपोर्ट प्लेसेस, इन सबको मिलाकर के एक क्यूमुलेटिव प्राइसिंग की गई है। मैं डिटेल में तो आऊंगा, मगर जो बड़ी संख्या है, जो कुल संख्या है, वो मैं आपको बता देता हूं। ये जो कैलकुलेशन हुआ, तो 3 ग्रेड में कैलकुलेशन किया गया। सबसे सस्ते टिकट, बीच वाले महंगे टिकट और सबसे महंगे टिकट। सबसे सस्ती गाड़ी, सबसे सस्ते होटल, बीच वाले और सबसे महंगे, इन 3 ग्रेड में कैलकुलेशन किया गया। और मिड ग्रेड सेक्शन को लिया गया है कि चलिए वो बीचों बीच के होटल में रुके हैं, वो बहुत बड़ी लिमोजिन में नहीं चले हैं, छोटी सी गाड़ी में चले हैं, मगर शॉफर ड्रिवन है। इस प्रकार के कैलकुलेशन को लेने के बाद 2004 से 2026 तक राहुल गांधी 54 यात्रा जो उनकी रही विदेश की, उसमें उनका खर्चा हुआ है 60 करोड़, 60 करोड़ रुपए का खर्चा राहुल गांधी जी के विदेश यात्रा में रहा है। अब हम इस पे 2 विषय को कंपैरिजन में रखेंगे। 60 करोड़ राहुल गांधी जी ने व्यक्तिगत तौर पे खर्च किया है अपने विदेश यात्रा पे, नंबर 1। इसमें हमने कोई कमिटी वाली कि भारत की सरकार ने उन्हें कहीं भेजा है या पार्लियामेंट की किसी कमिटी में चले गए हैं, उन यात्राओं को इंक्लूड नहीं किया है। ये 54 यात्रा वो है जो उनके व्यक्तिगत है, उसमें 60 करोड़ खर्च हुए हैं। अब उसमें हमारे पास यहां पर
फॉर्म 26, जब कोई एमपी चुनाव लड़ता है या एमएलए चुनाव लड़ता है तो वह एफिडेविट सबमिट करता है। नॉमिनेशन के समय एफिडेविट में फॉर्म 26 भी सबमिट होता है, और जब फॉर्म 26 सबमिट होता है तो आप अपनी आमदनी भी डिक्लेयर करते हैं। पहले जो एफिडेविट होता था 2013-14 के चुनाव से पहले, उस समय वो कॉलम आपकी आमदनी की नहीं होती थी। 2013-14 के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं और जो फॉर्म आया है उसमें आप वार्षिक रूप से आपकी आमदनी कितनी होती है यह स्पष्ट रूप से आप एफिडेविट में लिख के देते हैं कि मेरा इस वर्ष की आमदनी इतनी है, इस वर्ष की आमदनी इतनी है। तो ये आमदनी आप लिख के देते हैं। तो हमारे पास राहुल गांधी जी के बैक टू बैक 2013-14 से 2022-23 तक असेसमेंट ईयर 2013-14 से असेसमेंट ईयर 2022-23 तक का जब वो चुनाव लड़े, क्योंकि लास्ट चुनाव 24 का था और 24 के चुनाव के लिए 22-23 का उन्होंने अपना इनकम दिखाया है, तो कंटिन्यूअस 10 वर्ष के उनका आमदनी प्रत्येक वर्ष 10 वर्षों तक वो कितना अर्न करते रहे वो हमारे पास डिटेल है, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में है, आप भी निकाल सकते हैं। तो कितना उन्होंने अर्न किया, कुल मिलाकर के 10 वर्षों में, विगत 10 वर्षों में 10 असेसमेंट ईयर में राहुल गांधी जी की आमदनी थी 11 करोड़ रुपए। 11 करोड़ रुपए की आमदनी, 60 करोड़ रुपए फॉरेन ट्रिप में खर्चा। BJP leader C.R. Kesavan launched a sharp attack on leader of opposition Rahul Gandhi and Congress governments while praising Prime Minister Narendra Modi for adopting austerity measures. Keshav said Prime Minister Modi has substantially reduced his security convoy in line with austerity measures and described him as a leader who walks the talk. Prime Minister Narendra Modi ji is a trusted statesman who walks the talk, while Rahul Gandhi is a humbug hypocrite who indulges in cynical skepticism. Prime Minister Modi ji, true to his word, keeping national interest in mind, has now adopted austerity measures, substantially reducing his security convoy cavalcade. This is most commendable, and now we've seen Home Minister Amit Shah ji and other central ministers doing the same, and we've seen Modi ji lead by example before. During the deadly corona pandemic, it was Prime Minister Narendra Modi ji during the second phase who volunteered to go and get himself vaccinated with the indigenous vaccine, building trust in our people. And this is precisely what he's doing today. And not only that, Prime Minister has also asked for inclusion of electric vehicles in his convoy for conserving energy. BJP state governments all over the country are now following these austerity measures and reducing expenditure. Now everybody's focus is on Rahul Gandhi, LOP, leader of Paryatan and leader of tourism and travel. Rahul Gandhi has a lot of frequent flyer mileage but no mileage with the people. Now the question everybody is asking is, will Rahul Gandhi, who wastes no time in ridiculing and abandoning national interest, will Rahul Gandhi personally follow the example of Prime Minister Modi ji, and will he instruct his Congress governments to undertake austerity measures? But all the evidence seems to be on the contrary. While Prime Minister Narendra Modi ji's central government ensured that our people were protected from international shocks, when it came to petrol and diesel, the Himachal Congress government mercilessly increased the petrol diesel prices. The only austerity measure the Himachal government is undertaking is denying and not paying salaries and pension for honest civil servants. And take the case of Karnataka government, the entire state has expressed their disapproval and dissent in the manner reckless, insensitive, inconsiderate splurge the Karnataka government is involved in. So the people of India are very clearly seeing two different choices. One, you have Prime Minister Narendra Modi ji not only advocating conserving energy, preserving foreign currency, promoting indigenous products, reducing expenditure, and also strengthening our self-reliance. Prime Minister Modi ji is leading by example by following whatever he is advocating. And on the other side, you have Rahul Gandhi and the Congress party who once again failed their duty to our nation by indulging in negative cynicism. Haryana Chief Minister Nayaap Singh Saini attended the Nikkei Chunav Samman Samora at the
BJP office and hid out at the Congress and leader of opposition Rahul Gandhi over remarks on the Haryana government. Saini said the opposition was claiming improved performance compared to previous election but accused Congress of insulting democracy. के नेता का बयान सुन रहा था तो वो ये बात बोल रहे थे, कहा पिछले प्लान का चुनाव था उससे अच्छा प्रदर्शन किया है। हाँ, उससे अच्छा प्रदर्शन किया है। भाइयों, लगातार इस प्रकार का दुष्प्रचार ये विपक्ष के द्वारा किया जाता है कि वोट चोरी हो गया। मैं हैरान था, राहुल गांधी एक यात्रा में शामिल होने के लिए आया, आने से पहले ट्वीट कर दिया, शिक्षा कहा हरियाणा घुसपैठियों की सरकार है। ये इस प्रकार का लोकतंत्र का अपमान करना ये कांग्रेस की फितरत में रहा है। परंतु साथियों, मैं प्रदेश के लोगों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं जो नॉन स्टॉप साथियों कमल का फूल खिलाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के लोग जो नॉन स्टॉप कमल का फूल खिलाने का काम आदरणीय नितिन नबीन जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। साथियों, ये लोगों का जन है और लोग आदरणीय मोदी जी से कमल के फूल से प्यार करते हैं, काम किए हैं। लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर लगातार सरकार मजबूती से आगे बढ़ रही है। Political tensions between the AIADMK resurfaced today in Tamil Nadu as MLAs from both the EPS and CV Shanmugam camps separately met Assam Speaker JCD Prabhakaran at the Secretariat. Both factions have reportedly urged the Speaker to officially recognize their respective nominees for the post of Deputy Leader and Party to whip the Assembly. Fresh political tensions have erupted in West Bengal over allegations of post-poll violence, with Trinamool Congress MP Kalyan Banerjee accusing the BJP of failing to act against vandalism and unrest. हम लोग जो बोला है पोस्ट वायलेंस जो बीजेपी वर्कर कर रहे हैं और पुलिस कोई स्टेप नहीं ले रहा है। हम लोग दिखा दिया जेल नंबर 1 कितना पार्टी ऑफिस को वैंडलाइज किया है, तोड़ मोड़ के भांग दिया। उसके बाद हमारा लिस्ट दे दिया 2000 आदमी को, अभी दे दिया, उसके बाद फिर भी देंगे 2000 आदमी को। जोन लोगों को उनका घर में नहीं रहने सकता है, अभी सब बाहर चला गया डर से, बीजेपी का वर्कर का डर से। 3 नंबर दिखा दिया कौन कौन मकान, छोटा बाड़ी, गरीब आदमी का बाड़ी, उस बाड़ी को प्राय 2000 इस तरफ का बाड़ी को भांगचूर कर दिया। हम लोग दिखा दिया हॉक मार्केट को बात आप जो बोल रहे थे,
जो 300-400 पुराना का हॉग मार्केट है, वो हॉग मार्केट का कुछ एरिया में डिमोलिश कर दिया। उस छोड़ के और 8 जगह को नाम हम लोग दिखा दिया, ये इस जगह बुलडोजर देके इसको तोड़ फोड़ कर दिया। उत्तर प्रदेश को जो है वो कल्चर ले आया। सुप्रीम कोर्ट ने इसका पहले बोला जो बुलडोजर जस्टिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये संविधान का चिंता में कोई नहीं सोच भी सकता है, जो किया है वो कोई सोच भी नहीं सकता है। और अभी जो हो रहा है ये पूरा लॉलेसनेस है। हम लोग मांगा है इमीडिएटली पुलिस को एक्टिव होना होगा, हर जगह में एक्टिव होना होगा। जैसे इस तरह का से नहीं चलता है। जो मकान छाड़ के चला गया उस मकान को आदमी को सबको घर वापस करना है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। 3 नंबर, जो पार्टी ऑफिस भांगचूर हो गया वो पार्टी ऑफिस को ठीक करके, पुलिस को ठीक करके वो पार्टी ऑफिस तृणमूल को देना होगा। और हम लास्ट में बताया जिस तरीके से वैंडलिज्म चल रहा है, कोई एक जज ऑफ द हाई कोर्ट को अपॉइंट कीजिए इसको देखने के लिए सो हम लोग ऐसा कोई उनका पास भी जा सकता है, उनको भी बोलने भी सकता है। ये भी हम लोग ये बात बोला है। ममता दी हमारा साथ अपियर किया है। ममता दी भी बोला है मुस्लिम लोग को, शेड्यूल कास्ट लोग को, शेड्यूल ट्राइब लोग को बहुत मारपीट हो रहा है उधर एरिया में। वो लोग मारपीट कर रहा है उन लोग का घर बाड़ी तोड़ दे रहा है। उन्होंने बोला है 12 वर्ष का एक लड़की को थ्रेट किया है रेप करने के लिए। हम भी हमारा पिटीशन में बोला है 2 लड़की को कैसे असॉल्ट किया है वो भी हम लोग बोला है, उन लोग वो भी बोला है। तो उन लोग बोला है जो पुलिस का पास एक कोई खबर नहीं है, हम लोग नहीं जानते है अभी तक। तो ये जब हालत है तो पुलिस कुछ नहीं करने सकता। मामला करने के बाद हम लोग जब निकाल रहे थे, ममता दी को कैसे हैकल किया है बीजेपी लॉयर को, वो आप लोग का सामने हुआ है। आप लोग देखा है। आप लोग कोई वीडियो बनाया कि नहीं बनाया ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ आदमी तो बनाया है, उन लोग को पास से दे दिया। एक लॉयर ने उसको, उन्होंने शुभेंदु अधिकारी का काउंटिंग एजेंट था, वो दिन जब काउंटिंग में ममता दी इलेक्शन एजेंट था, ममता दी को हैकल किया था, वही आज पूरा लीडरशिप देके पूरा जगह में आज वो उसको हैकल किया है, ममता दी को हैकल किया है और बहुत गाली भी दिया है, उल्टा सीधा बात भी किया है। जो है आप लोग देख लेंगे, जो वीडियो में है वो आप लोग देख लेंगे। नहीं सुनिए, सुन लीजिए भैया, क्वेश्चन अराइजेस बाद में होगा, हमको बोलने दीजिए पहले। हाईकोर्ट का अंदर इतना लॉलेसनेस होगा तो पश्चिम बंगाल का आदमी का पास क्या भरोसा है इस सरकार को? आज जो लॉलेसनेस हुआ है वो चीफ मिनिस्टर लीडरशिप देके कलकत्ता हाईकोर्ट में इसको लॉलेसनेस किया है। कभी कलकत्ता हाईकोर्ट में इस तरफ का घटना कभी नहीं घटा। आज जो घटा कभी नहीं घटा। हम 45 ईयर्स आई एम इन प्रोफेशन। हमको भी वो लोग आने नहीं दे रहा है। इतना धक्का खाया। हमने बोला हम इधर आके हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बोलेंगे। इधर आके भी हम 10 मिनट हमको पूरा रेस्पिरेशन को लेने के लिए 10 मिनट लग गए, 10 मिनट लगा। यही हालत है अभी पश्चिम बंगाल का। हाईकोर्ट के ये हालत होगा तो पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है आप लोग देख रहे हैं। चलिए। That's all for now. For more news, keep watching Hornbill TV.